Today, in my previous class, I started the chapter remainder theorem and factor theorem. Okay, and I discussed the remainder theorem and the example related to the remainder theorem. Okay, today I am going to discuss the factor theorem and some example of factor theorem. Okay, now students, firstly, for example, this is a number 15. Okay, if we divide this number 15 by 3, then we know that 3 5s are 15 and we get remainder 0. Okay, if we get remainder 0, in this case we can say that 3 is the factor of 15. Okay, we know that if we get remainder is 0, it means 3 is the factor of 15. But if here the number is 16, then we get remainder 1. Okay, we get remainder 1, and in this case we can say that 3 is not a factor of 16 because we get remainder 0. Again, if here is 7, we get remainder 2. It means 3 is also not a factor of 17. If here the number is 18, then 3 6 are 18. We get remainder 0. It means if remainder is 0, then we can say that this divisor is a factor of dividend. Okay. Now let's see the factor. Actually, the factor theorem is exactly this. Okay. Let's see. When a polynomial fx, okay, with degree greater than or equal to 1. Greater than or equal to 1 means x minus a, x minus 5, x square plus 3x minus 5. Okay, and is divided by x minus a. Okay, the remainder is fa. This is remainder theorem. We know that remainder is fa. Now after that, if this remainder fa is equal to 0, means fa is 0, it means we can say that fx is completely divisible by x minus a, and x minus a is a factor of polynomial fx. Means what is remainder theorem? This is a polynomial fx. Okay, this is divisor x minus a, then we get remainder fa. Okay, if this remainder fa is 0, then we can say that x minus a is the factor of fx. Okay, means fx is completely divisible by x minus a. Clear? Okay, now let's see the example. Then student, what is remainder theorem? Remainder theorem is if a polynomial px is divisible by x minus a, then pa is the remainder. And what is factor theorem? The factor theorem is if a polynomial pa or px is divisible by x minus a, and if we get remainder is 0, means fa is 0, then the divisor x minus a is completely is a factor of fx. Okay. Now let's see the questions of example of factor theorem. Now students, see the question. The question is, so that x minus 2 is not a factor of polynomial this. Okay, not a factor. Then let's see the solution. Students, we know that here the value of fx, actually here you can let fx, px
both of the terms. Okay, fx भी आप लेट कर सकते हो, qx px भी लेट कर सकते हो. Is equals to 3 4 minus 4q minus 10x square minus 5x minus 28. Okay, now as we know that here gx is x minus 2. Okay, then when we divide fx by gx, then on division we know that gx is equals to 0, then x minus 2 is equals to 0, then x is equals to 2. Okay, now put the value of x is equals to 2, then we get, when we put this is f2 is equals to 3 2 4 minus 4 2q minus 10 2 square minus f2 minus 28. Okay, here student, this is 3 into 16 minus 4 into 8 minus 10 into 4 minus 10 minus 28. Okay, this is 48 minus 4 into 8 is 32 minus 40 minus 10 minus 28. Okay, now this is 48 minus, when we add these terms we get 2 7 minus 8 3. Okay, then this is 48 minus 110. Okay, 48 minus 110. On solving it we get the value, actually students here this is plus. Okay, this is plus. Now this is 0. 8 plus 2 is 10. 5 5 3 8 minus 50. Add these terms. 8 80 minus 72 is 2. Then f2 is 2. Okay, what question? So that this is not a factor of the polynomial this, and here we get remainder is equals to 2. Okay, which is not equal to 0, which is not equal to 0. It means we can say that x minus 2, hence x minus 2 is not a factor of polynomial fx. Okay, because we know that if we get remainder 0, then we can say that this is a factor of polynomial, but here remainder is not 0. Okay, and from the remainder theorem we know that if we get remainder as a 0, then we can say that this is factor, but here remainder is not 0. Okay, now let's see the next example. Now student, the next question is find the value of k if x minus 3 is a factor of kx square minus kx minus 2. Okay, let's see the solution. We have fx is equals to kx square k square x square minus kx minus 2. Okay, here when we divide this fx divided by
x minus 3. It means x minus 3 is 0 and x is equals to 3. Put x is equals to 3 here. We get f 3 is equals to k square 3 square minus k 3 minus 2. This is 9k square minus 3k minus 2. Okay? Here, students, this is given that find the value of k if x minus 3 is a factor of this. As we know that if x minus 3 is factor of the polynomial fx, it means f3. Okay? Here, firstly we write, if x minus 3 is a factor of fx, it means f3. It means x minus 3 is 0, x is equals to 3 and f3 is 0. Okay? If x minus 3 is a factor of polynomial fx, it means f3 is 0. We know that the remainder is 0. Now, f3 is equals to, here put the value k square 3 square minus k 3 minus 2. Now here we put 0, then 9k square minus 3k minus 2. Then equation become 9k square minus 3k minus 2 is equals to 0. Students, this is a quadratic equation. Okay? Firstly we factorize it. Now find the factors of this equation. 9 2s are 18. When we factorize it, we get 9k square minus 6k plus 3k minus 2 is equals to 0. Minus 6k plus 3k is minus 3k and 6 3s are 18. Okay? Here we take common 3k, then this is 3k minus 2. Here we take common 1, then this is 3k minus 2 is equals to 0. Then 3k minus 2 and 3k plus 1 is equals to 0. Okay? Firstly, if 3k minus 2 is equals to 0, then 3k is equals to 2, then k is equals to 2 by 3. Okay? Their second case is if 3k plus 1 is 0, 3k plus 1 is 0, then 3k is equals to minus 1, then k is equals to minus 1 by 3. Okay? Then the value of the final answer is k is equals to minus 2 by 3 and k is equals to minus 1 by 3. Let's see the solution. We have a polynomial here. It is given that then x minus 3 is a factor of fx. If x minus 3 is a factor of fx, it means f3 is 0. If f3 is 0, then on putting the value of x is equals to 3 in equation number 1, we get a quadratic equation. On solving this quadratic equation, we get two factors. Okay? When we solve these two factors, we get the value of k is equals to this. Okay? Actually, here the multiple of these two factors is 0. It means this is in first case, if 3k minus 2 is 0, in second case 3k plus 1 is 0. Okay? Now see the next question. Solution of the next question. The next question is, show that the factors of this are x minus 3 and x plus 4. Firstly, let's see the solution. We have
है कि नहीं है. Then when fx is divided by x minus 3, then x minus 3 is 0, x is 3. In equation number 1, put in equation 1, we get f3 is equals to 3 square plus 3 minus 12. Then f3 is equals to 9 plus 3 minus 12. Then 9 plus 3 is 12 minus 12. Then f3 is 0. If f3 is 0 means remainder is 0, which is equal to 0. Here, which is equal to 0. It means x minus 3 is a factor of polynomial fx. Okay? If we get remainder as a 0, then we can say that x minus 3 is a factor of fx. Okay? Now check the second. If when x minus x plus 4 is divided when fx is divided by x plus 4, then x plus 4 is 0, then x is minus 4. Now put the value of putting x is equals to minus 4 in equation number 1. Then f minus 4 is equals to minus 4 is square plus minus 4 minus 12. Then f minus 4 is equals to 16 minus 4 minus 12. This is 16 minus 16. This is 0. Then f minus 4 is 0, which is equal to 0. It means hence x plus 4 is also a factor of fx. Clear, students? This is the solution of the question. The question is, if x square minus 1 is a factor of the polynomial, this polynomial, show that a plus c plus e is equals to b plus d is equals to 0. Okay, students? Here we have a polynomial fx is equals to ax4 plus bx cube plus cx square plus bx plus e. Okay? Now, if it is given that x square minus 1 is a factor of polynomial, okay? X square minus 1 is a factor of polynomial fx. Okay? It means x, students, this is x square minus 1 square. Means this is x minus 1, x plus 1. Okay? Here we use the identity a square minus b square. Then this is x minus 1 and x plus 1. It means these are the factors of fx. Okay? It means firstly x minus 1 is equals to 0, then x is equals to 1. When x is equals to 1, then f1 is 0. Okay? If x plus 1 is 0, then x is equals to minus 1, then f minus 1 is 0. Okay? Now put these two values in equation number 1. Okay? In equation number 1, we get, when we put x is equals to 1 here, we get a plus b
plus C plus D plus E is equals to 0. Actually here the value of x is 1, then square of 1 is 1, cube of 1 is 1. Okay. Now this is equation number 2. Similarly, when we put here minus 1, this is A minus 1 plus B minus 1 plus C minus 1 plus D minus 1 plus E is equals to 0. Means A minus B plus C minus D plus E is equals to 0, and let this equation number 3. Now on adding equation number 3, when we adding equation 2 and 3. Students, when we add these two equations, then A plus A, actually here this become A plus B plus C plus D plus E is equals to 0, and A minus B plus C minus D is equals to 0. Then 2A plus B, 2A plus C plus E is equals to 0. Okay. Then A plus C plus E is equals to 0. Okay. When we add A plus A is 2A, C plus C is 2C, E plus E is 2C. Okay. Now students, on subtracting equation number 2 and 3, we get A on subtracting. This is A plus B plus C plus D plus E is equals to 0. A minus B plus C minus D plus E is equals to 0. This is minus plus minus plus minus. Cancel. Here this is cancel. Then here we get 2B plus 2D is equals to 0. 2B plus D is equals to 0. Then B plus D is equals to 0. This is the proving. B plus A plus E plus E is equals to 0, and B plus D is equals to 0. Okay. Now students, that's all for today. We will continue this chapter on my next class. Thank you so much. Hello students, शिवानी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस में माई सेल्फ जैसी विज्ञान। आज मैं क्लास 9th में विषय हिंदी। मैं आपको मीराबाई की जीवनी मीराबाई की व्याख्या पढ़ाऊंगी। उसमें बच्चों आपको व्याख्या कैसे करनी है, कौन कौन से पॉइंट होते हैं, पहले उसका क्रम क्या होता है,
शुरुआती वर्ड हो गए, शुरुआती अक्षर हो गए, शब्द हो गए। अब इसका लास्ट बछल गोपाल, बछल गोपाल। इससे ये जानकारी मिलती है कि आप इस पद की व्याख्या कर रहे हैं। अब दूसरे नंबर पे आता है संदर्भ। दूसरे नंबर पर आता है संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखते हैं? प्रस्तुत पद्यांश, पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पदावली शीर्षक से पदावली शीर्षक से उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता मीराबाई जी हैं। तो बच्चों ये हो गया आपका संदर्भ। पहला पॉइंट कौन सा होता है? संकेत का। संकेत में पहला अक्षर और पद के लास्ट का अक्षर। फिर इसके बाद संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में सम्मिलित पदावली शीर्षक से उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता मीराबाई जी। ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है, देखिए, पद के आधार पर आपका प्रसंग होगा। प्रसंग देखिए, प्रसंग में लिखते हैं प्रस्तुत पद में मीराबाई की श्री कृष्ण के प्रति निश्चय भाव प्रकट हुआ है। निश्चय भक्ति प्रकट हुई है। बच्चों इतना आपको प्रसंग में लिखना है। इसके बाद फिर यहाँ पर
गे पद। इसके बाद आता है अलंकार। अलंकार में प्रास एवं रूपक। रूपक शैली। पांचवा पॉइंट आता है शैली। गीत मुक्तक शैली। मुक्तक शैली। गुण। प्रसाद गुण। बच्चों काव्य संकलन में इतने पॉइंट होते हैं। एक बार मैं फिर से व्याख्या करने के लिए जो मुख्य बिंदु है उसके बारे में मैं आपको पुनः बताती हूँ। देखिए व्याख्या करते समय सबसे पहला पॉइंट डालेंगे संकेत। संकेत में आप जिस पद की व्याख्या कर रहे हैं उसका पहला शब्द और लास्ट का। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है संदर्भ। संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पदावली शीर्षक से उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता मीराबाई जी हैं या इसकी कवित्री मीराबाई जी हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है बच्चों, तीसरा बिंदु है जिसको प्रसंग कहते हैं। प्रसंग में प्रस्तुत पद में मीराबाई की श्री कृष्ण के प्रति निश्चल भक्ति प्रकट हुई है। प्रसंग ज्यादा लंबा नहीं करते। फिर इसके बाद चौथा पॉइंट आता है व्याख्या, जो अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको। फिर लास्ट पॉइंट आता है जिसको काव्य संदर्भ कहते हैं। इसमें पहला रस, कौन सा रस है? भक्ति रस और शांत रस। फिर छंद में गे पद है। मीराबाई द्वारा ये पद गाए गए हैं इसलिए गे पद। फिर तीसरा है अलंकार, अनुप्रास एवं रूपक। फिर भाषा राजस्थानी मिश्रित भाषा। फिर शैली गीत मुक्तक शैली। फिर गुण प्रसाद गुण। तो बच्चों व्याख्या करने के लिए कितने पॉइंट, कितने बिंदु अति आवश्यक हैं। देखिए बच्चों व्याख्या के कितनी बिंदु हैं ये मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा चुकी हूँ। पहला बिंदु क्या बताया था मैंने? संकेत। दूसरा क्या बताया था बच्चों? संदर्भ। तीसरा क्या बताया था? व्याख्या। अब देखिए वही व्याख्या मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से आपको सुनना है और फिर उसी हिसाब से आपको लिखना है। देखिए बसो मेरे नैनन नैनन मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भार मोहनी मूरति सामर सुकृत नैना बने निशान अधर सुधारस मुरली राजत और बैजंती मान क्षुद्र घंटिका पट तट शोभे
आकृति है। श्री कृष्ण के मुकुट पर कैसे चिन्ह बने हुए हैं? उन्होंने जो मुकुट धारण कर रखा है मछली की मोर मुकुट, यानी मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट विराजमान है। मकराकृति कुंडल और उनके कानों में मछली की आकृति के कुंडल शोभायमान हो रहे हैं।
में मिश्रित ब्रजभाषा है और शैली गीत मुक्तक शैली है और भाषा शैली गुण प्रसाद है। बच्चों इतना आप करेंगे तब एक व्याख्या आपकी संपूर्ण होगी। अब दूसरे पद में आइए। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खुआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त समायो, सत की नाव त्रिवटिया सतगुर भव सागर तर आयो, मीरा बेवट बेधर नागर हरक हरक जस आयो। दूसरे पद में आए। प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई ने कीर्तन और भजन पर विशेष महत्व डालते हुए कहा। मीराबाई कहती है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती है कि मुझे तो राम रूपी रतन धन की प्राप्ति हो गई है। मैंने तो राम रूपी रतन धन को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर। सतगुरु माने क्या है? सच्चे गुरु। मेरे सच्चे गुरु ने मुझे एक अमोलक माने एक अमूल्य वस्तु, मेरे सच्चे गुरु ने मुझे एक ऐसी अमूल्य वस्तु प्रदान की है। मुझ पर कृपा करके मुझे एक ऐसी अमूल्य वस्तु प्रदान की है जिसको जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबई खुआई, और उस अमूल्य वस्तु को मैं जन्म जन्मांतर तक उसके बदले में मैं उस अमूल्य वस्तु को जन्म जन्मांतर तक कभी से अपने से अलग नहीं होने दूंगी। जब में और उस अमूल्य वस्तु के प्राप्त होने पर मैंने इस संसार में झूठे सुखों को और इस नश्वर संसार की सुंदरता को यानी सब कुछ छोड़ दिया है। मैं सब कुछ भूल गई हूँ। उस अमूल्य वस्तु की प्राप्त होने पर मैंने इस संसार के झूठे सुखों को खो दिया है, त्याग दिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। मीराबाई जी कहती हैं, वो अमूल्य वस्तु एक ऐसी वस्तु है जो खर्च करने पर कभी खर्च नहीं होती है और कोई चोर इसे चुरा नहीं सकता है, और दिन दिन बढ़त समायो, और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है, कभी कम नहीं होता है। सत की नाव त्रिवटिया सत। मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे सच्चे गुरु ने मुझे संसार रूपी समुद्र से पार जाने के लिए एक केवट अर्थात एक नौका का प्रबंध भी कर दिया है। मेरे सच्चे गुरु ने मुझे इस संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए यानी मोक्ष पाने के लिए मुझे एक नौका का भी जो है प्रबंध कर दिया है। मीरा के
students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Myself Jyoti Mishra, and today I will explain the geography chapter drainage. In my previous video, I had explained you the drainage system of India. We will divide the drainage system of India in two parts: the Himalayan rivers and the peninsular rivers. Himalayan rivers जो कि हिमालय से ड्रेन करती हैं और फॉल होती हैं, कुछ रिवर्स जो कि बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ, दिस इज बे ऑफ बंगाल एंड दिस इज अरेबियन सी. तो कुछ रिवर्स जो होती हैं जो कि हिमालयन रिवर्स होती हैं, जिन्हें हम नदर रिवर्स भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये नदर से निकलती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ठीक है, तो ये नॉर्थ से निकलने की वजह से इन्हें हम नदर रिवर्स बोलते हैं और हम इन्हें हिमालयन रिवर्स भी बोलते हैं. पेनिनसुलर रिवर, ये हमारा पेनिनसुलर पोर्शन है. बार बार मैं बताती हूँ, पेनिनसुलर जिसको बोलते हैं जहां पर थ्री साइड से वो वाटर से जो है वो अराउंड होता है. तो दिस इज द पेनिनसुलर पोर्शन. और यहाँ पर जो रिवर्स होती है ये हमारी सदर्न रिवर्स कहलाती हैं और इन्हें हम पेनिनसुलर रिवर्स भी बोलते हैं. सबसे पहले मैं हिमालयन रिवर्स को डिस्क्राइब करूंगी. द हिमालयन रिवर्स, हिमालयन रिवर्स जो होती हैं वो भी थ्री होती हैं, थ्री पार्ट्स में डिवाइड होती हैं. तो फर्स्ट इज द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी. सबसे पहले इंडस रिवर के बारे में बताऊंगी और उसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज होती हैं ये हम पढ़ेंगे. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी. फिर गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में. एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी. और थर्ड है हमारा ब्रह्मपुत्र. ये थ्री रिवर्स हैं जो हिमालय से निकलती हैं और उसके बाद कुछ बे ऑफ बंगाल में और कुछ अरेबियन सी में ड्रेन कर जाती है. तो अब ये हमारा हिमालय का पोर्शन है और यहाँ पर मैं आपको ये थ्री रिवर्स के और उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे. एंड नाउ द फर्स्ट इज द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी. सबसे पहले हम इंडस को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे. इंडस जो रिवर है वो हमारी, देखिए ये हमारा नेपाल है. यू ऑल नो इट्स द पोर्शन इज नेपाल. इज इट क्लियर? सो दिस फ्रॉम दिस वे दिस इज द इंडस रिवर. ये ठीक है, यहां पर हमारी मानसरोवर लेक है. मान सरोवर लेक. ठीक है, तो जो इंडस रिवर है वो यहां से निकलती हुई है मानसरोवर लेक से. और ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि जम्मू कश्मीर से होते हुए किस तरह ये पाकिस्तान की तरफ चली जाती है. ठीक है, और पाकिस्तान के बाद ये यहाँ से फिर अरेबियन सी में ड्रेन कर जाती है. सो द फर्स्ट इज ओरिजिनेट नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत. ये जो मानसरोवर लेक है वो तिब्बत में है. तिब्बत के मानसरोवर लेक से ये जो हमारी इंडस रिवर है वो यहां से ओरिजिनेट होती है, इंडस, और इंडिया में यहां से होते हुए, और ये इस तरीके से आपने देखा कि पाकिस्तान से होते हुए ये अरेबियन सी में ड्रेन कर जाती है. द सेकंड इज ड्रेन इनटू अरेबियन सी. मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है कि ये अरेबियन सी में जाके ड्रेन करती है. द थर्ड, अब इसकी टोटल लेंथ कितनी है? देखिए टोटल लेंथ इसकी है 2900. मतलब कि वो यहां से ओरिजिनेट होने से लेके और ये पूरा जो इसका पोर्शन है, और जब वो अरेबियन सी में ड्रेन करती है जाके, तो जो उसकी लेंथ है टोटल वो है 2900. बट इन इंडिया, क्योंकि हमने देखा इंडिया में ये बहुत थोड़ी जगह पर ही है, तो इंडिया में जो इसकी लेंथ है वो 709 किलोमीटर इंडिया में है. अब इसकी देखिए ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है. इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो है सतलुज, बीज और रावी. अब सतलुज, बीज और रावी, ये मैं आपको मैं रिवर्स के बारे में मैप में बताऊंगी तब मैं क्लियर करूंगी, बट थोड़ा सा मैं बता देती हूँ. यहाँ से एक सतलुज रिवर भी निकलती है जो ये पंजाब से होते हुए ये इस तरफ चली जाती है. ठीक है, ऐसे ही सतलुज है. फिर लाइक दैट बीज, इसी से बीज या रावी, इस तरह से जो है हमारी ट्रिब्यूटरीज निकलती है. और जो इसमें से सतलुज, बीज और रावी है, ये जो इनका जो वाटर होता है वो इंडिया में यूज होता है. और ये सब हमारी इंडस की ट्रिब्यूटरीज है. ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? जो कि किसी एक रिवर से छोटी छोटी सी कई रिवर्स निकलती हैं, वो उस मेन रिवर की ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं. ठीक है, तो ये हमारी ट्रिब्यूटरीज हो गई, जिसमें से ये हमारी सतलुज हो गई, और बीज और रावी, इनका वाटर जो है वो यूज होता है इंडिया में. इसी के साथ साथ चेनाब, झेलम और जो इंडस रिवर है. अब ये जो इंडस का वाटर है, इसी में जो हमारी चेनाब है, झेलम है, जो भी हमारी रिवर्स
रिवर्स निकल रही है, उन सबका जो हमारा वाटर होता है वो वाटर यूज होता है पाकिस्तान में, क्योंकि इंदस की ट्रिब्यूटरी है। तो इंदस में इंदस रिवर का वाटर, चेनाब रिवर का वाटर और झेलम का जो पाकिस्तान में यूज होता है, और जो सतलुज, बीज और रावी का है वो हमारी इंडिया में यूज होता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक इंदस वाटर ट्रीटी भी हुई थी। इस ट्रीटी में के जो है वो अकॉर्डिंग वो लोग पानी को शेयर करते हैं, इंदस रिवर के वाटर को शेयर करते हैं इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारी हो गई इंदस रिवर, मानसरोवर से ओरिजिनेट हुई और इसके बाद यहाँ से होते हुए ये हमारी अरेबियन सी में ट्रेन हो गई। सेकेंड है हमारा द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। अब हम पढ़ेंगे कि गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होती है। गंगा रिवर आप सबको पता है ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय। हिमालय में गंगोत्री, देखिए ये हमारा उत्तराखंड है, ठीक है, यहाँ पर हमारा गंगोत्री है। ये गंगोत्री से हमारी गंगा रिवर इस तरह से करके निकलती है। तो हिमालय से एज आफ्टर क्रॉसिंग इंडिया, इसके बाद इंडिया को ये क्रॉस करती है और देन बांग्लादेश फॉल्स इन बे ऑफ बंगाल। और ये यहाँ से इंडिया को, इंडिया में देखिए यूपी, फिर बिहार और यूपी बिहार, और ये आप देखिए वेस्ट बंगाल उसको भी कवर करती हुई, फिर ये देखिए हमारा बांग्लादेश है और उसके बाद बांग्लादेश में होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में ट्रेड कर जाती है। तो ये हमारी कौन सी रिवर हो गई, ये हमारी रिवर हो गई गंगा, ठीक है। तो ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय एज आफ्टर क्रॉसिंग इंडिया एंड देन बांग्लादेश फॉल्स इन, कहां गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में। टोटल लेंथ जो है 2490 है, यहां से ओरिजिनेट होने से लेके बे ऑफ बंगाल तक 2490 इसकी लेंथ है। बट क्योंकि ये यहाँ के बाद से बांग्लादेश में चली जाती है, तो यहाँ तक उसकी लेंथ हम लोगों ने जो निकाली है वो लेंथ है 2070 किलोमीटर, जो कि इंडिया में है। एंड द नेक्स्ट नॉर्थ साइड ट्रिब्यूटरीज। अब देखिए जो द गंगा रिवर है उसमें क्या है, हमारी नॉर्थ और सदर्न दो तरह, दो साइड्स में उसकी ट्रिब्यूटरीज है। मतलब नॉर्थ साइड में भी है जो हमें यहाँ ऊपर देखने को मिलती है, और सदर्न का मतलब जो हमारे नीचे की तरफ देखने को मिलती है। अब देखिए नॉर्थ में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है उसकी, यमुना, जो सबसे बड़ी गंगा की ट्रिब्यूटरी है वो यमुना है, जो कि इसी के पैरेलल ऐसे करके निकलती है, इसको हम लोग यमुना नदी बोलते हैं। इसके बाद गोमती, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा गंगा की ट्रिब्यूटरी है जो लखनऊ में यहाँ पे हमें गोमती दिखती है। इसके साथ ही साथ जो है वो घाघरा, जो कि यहाँ से ऐसे करके इसकी ट्रिब्यूटरी निकल कर आई है। इसी के साथ गंडक भी हमारी है, इधर हिमालय से निकलती हुई दिखाई जाती है, और कोसी जो कि हमारी हिमालय से निकलती है, और ये हमारी बिहार में हम कोसी रिवर को देखते हैं। तो जितनी भी ये रिवर्स हमने आपको बताई, घाघरा, गंडक, कोसी एंड गोमती, दीज ऑल आर द नॉर्थ साइड ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा रिवर। एंड द सदर्न रिवर्स कौन कौन सी है, सदर्न ट्रिब्यूटरीज जो गंगा की है वो है सोन, चंबल और बेतवा। ये हमारी इसकी नदर्न साइड की है जो यहाँ से निकलती हुई है, और इधर कुछ कोई एमपी में और कोई राजस्थान की तरफ चली जाती है। इनको हम लोग बोलते हैं सोन, चंबल एंड बेतवा। द सोन, चंबल एंड बेतवा आर द सदर्न साइड ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा, एंड द यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी आर द नॉर्थ साइड ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब आपने देखा होगा कि जैसे गंगा और ये यमुना, मैंने आपको भी ये गंगा दिखाया, फिर ये मैंने यमुना दिखाया, ये दोनों जब यहाँ पर ये मीट होती है संगम में, तो यहाँ पर ये इलाहाबाद भी हमारा कहलाता है। इसके बाद ये बनारस से होती हुई और फिर ये इधर से जो है वो कोसी, और कोसी बन जाती है, और कोसी से यहाँ से जो गंगा की एक ट्रिब्यूटरी निकलती है, और ये फिर वेस्ट बंगाल से होते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। अभी मैं जब ब्रह्मपुत्र पढ़ाऊंगी तो फिर मैं बताऊंगी कि किस तरीके से गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो कि हमारे ये बांग्लादेश में आकर बनता है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा होता है। एंड नाउ द थर्ड इज द ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। अब देखिए ब्रह्मपुत्र ये ओरिजिनेट होती है क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंदस। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि सोर्स ऑफ इंदस, इंदस कहां से निकल रही है, जो इंदस का सोर्स है वो हमारा मानसरोवर लेक है। अब एंड द सतलुज इन वेस्टर्न तिब्बत, फिर मैंने बताया कि यहाँ पर एक इंदस की जो है ट्रिब्यूटरी निकलती है सतलुज, वो भी देखिए इधर से यहाँ तक आ रही है। तो हम जब इसका निकालेंगे कि ब्रह्मपुत्र का जो ओरिजिनेशन की वो कहां से ओरिजिनेट होती है, तो ये देखिए स्टार्टिंग ये जो सोर्स ऑफ इंदस रिवर है और जो सतलुज का एंड है, यहाँ से हम दिखाएंगे आपको तिब्बत से ही। और ये देखिए ये निकल रही है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर, और ये अरुणाचल प्रदेश के पास से इंडिया में इंटर करती है, और इस तरीके से असम और यहाँ से होते हुए बांग्लादेश से होते हुए, और ये भी यहाँ पर बांग्लादेश में
इससे मिलती है गंगा से और यहाँ से मिलते हुए ये भी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये जो हमारी थर्ड रिवर दिख रही है ये हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर है। ब्रह्मपुत्रा रिवर, क्लियर? तो ओरिजिनेट क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंडस एंड द सतलुज इन वेस्टर्न तिब्बत। ये देखिए वेस्टर्न तिब्बत है, तो यहाँ सतलुज की स्टार्टिंग है, यहाँ से आपकी इंडस की का सोर्स है और यही से ही ये हमारी जो है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर निकल रही है। ब्रह्मपुत्रा रिवर को चाइना में, क्योंकि ये चाइना को भी क्रॉस करते हुए निकलती है, वहां इसको चुसोंग पो बोलते हैं। यहाँ पे उसका नाम दूसरा होता है। इंडिया में इसको हम लोग ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और जैसे जैसे ये हमारी यहाँ से होते हुए जब ये कहां पर आ जाती है, इन बांग्लादेश, इट मीन्स गंगा नोन एज पद्मा, और ये जब यहाँ पर मीट करती है गंगा में, बांग्लादेश में जब ये गंगा से मिलती है, और जब बांग्लादेश में जो गंगा हमारी है उसका नाम हो जाता है, बांग्लादेश में आके गंगा का नाम हो जाता है, क्या नाम हो जाता है गंगा का? गंगा को यहाँ पर आके पद्मा बोलते हैं। और जो हमारी ब्रह्मपुत्र है वो जब बांग्लादेश में आती है तो उसका नाम हो जाता है जमुना। नो कंफ्यूज विद यमुना, इट इज जमुना, ठीक है? तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो चाइना से निकलती है, तिब्बत के पास से, और चाइना से होते हुए चाइना में इसको सोंगपो बोलते हैं। इसके बाद ये इंडिया में आती है, अरुणाचल प्रदेश से एंटर होती है, जहां पर हम इसको ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं। इसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर करती है, बांग्लादेश में आके ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम जमुना हो जाता है। इधर से गंगा हमारी जो है वो गंगोत्री से जो है ओरिजिनेट हो रही है। उसके बाद और ये इंडिया को क्रॉस करते हुए जब बांग्लादेश में आती है तो बांग्लादेश में गंगा का नाम जो होता है वो पद्मा हो जाता है, और यहाँ पर आकर ये जमुना और पद्मा दोनों मिल जाती हैं, मतलब कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र दोनों मिलके यहाँ पर एक डेल्टा का जो है वो बहुत बड़ा सा डेल्टा बनाती है, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। और ये ब्रह्मपुत्रा भी और गंगा, ये दोनों रिवर्स जो होती है वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है, फॉल्स हो जाती है। फॉल्स इन बे ऑफ बंगाल, टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर, टोटल लेंथ जो है इसकी 2009 किलोमीटर इन इंडिया है, काफी लंबी लेंथ है, इंडिया में है। इन बांग्लादेश इट मीन्स गंगा नोन पद्मा, बांग्लादेश में इसको पद्मा बोलते हैं, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा जो है वो जमुना कहलाती है। और इसके बाद ये दोनों रिवर्स यहाँ पर मिलके बे ऑफ बंगाल में फॉल्स हो जाती है। अब देखिए आज हमने आपको हिमालयन रिवर्स के बारे में, सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम में हमने हिमालयन और पेनिनसुलर दो पार्ट में डिवाइड किया, फिर आज हमने हिमालयन रिवर्स को जो है डिस्क्राइब किया, जिसमें कि 3 है हमारी, इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड द ब्रह्मपुत्रा रिवर। और इन तीनों की जो ट्रिब्यूटरीज है वो भी मैंने आपको मैप से बहुत अच्छे से, मुझे लगता है, आई होप कि बहुत क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग प्लीज मुझे जो है ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है? एंड नाउ इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द पेनिनसुलर रिवर। मैं आपको पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में बताऊंगी कि कौन सी रिवर्स हैं जो कहां से ओरिजिनेट होती है और कहां पर जाकर वो ड्रेन होती है, और उनकी भी कोई ट्रिब्यूटरीज है कि नहीं है, ये भी आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फ्रॉम टुडे, थैंक यू।